Hello students, so today we are going to start a fresh programming chapter. The name of the chapter is file handling in Python. First of all, file kake bole. We have already studied databases in class 11. Class 11 database কোন জায়গা ছিল যেখানটায় আমরা ডেটাকে পার্মানেন্টলি স্টোর করে রাখতে পারি সো দ্যাট ইন ফিউচার যখন আমার রিট্রিভ করা দরকার আসবে সব ডেটাটা একসঙ্গে এক জায়গায় পাওয়া যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড ডেটাবেসেস। ডেটাবেসের একটা ছোট ভাই হচ্ছে ফাইলস। Files are the same thing that a database does. It stores the data permanently for us so that afterwards we can retrieve it, we can modify it, we can print it, we can append data to it and many things others. So sir, database আর ফাইলের মধ্যে তফাৎটা কোথায় চলে আসছে? Files are generally sequential in nature. Sequential মানে এক এক করে রিড করতে হবে. So therefore files are not suitable when we have to store a large amount of data. That has to be stored in database. Kintu files are quick, files are easy to understand and files are programmable. Database এর প্রবলেম কি ডেটাবেসটা যেভাবে আমাকে যে সফটওয়্যার আমি ইউজ করছি ডেটাবেসের যে ডিবিএমএস আমি ইউজ করছি ও রুলস আমাকে ফলো করে চলতে হবে কিন্তু ফাইলস এর মধ্যে কোনো রুল নেই ফাইলস এর সব রুল আমার ডিজাইন করা হবে কারণ আমি স্টোর করব আমি রিট্রিভ করব আমি ডিলিট করব সো দ্যাটস ওয়াই ফাইল আর বেনিফিশিয়াল সো আমাকে যখন একটা লার্জ সাইজের প্রজেক্ট বানাতে হয় জেনারেলি উই টেক দ্য ইউজ অফ বোথ থিংস উই ইউজ আ ডেটাবেস এন্ড অলসো উই ইউজ আ ফাইল সো টুডে উই হ্যাভ টু নো হাউ টু অপারেট আ ফাইল মানে তুমি একটা আর ফাইলটা কোথায় স্টোর হবে যেখানে আমার প্রোগ্রামটা স্টোর হচ্ছে দ্য ফোল্ডার অর দ্য ডিরেক্টরি ইন হুইচ ইউর program is being stored the same directory or the same folder your file will also be stored এবার স্যার ফাইলের এক্সটেনশন কি হবে ফাইল কি ফরম্যাট দিয়ে সেভ হবে যেমনি গানের ফাইল the song is stored as .mp3 pictures are stored as .jpg videos are stored at .mp4 similarly these files are generally stored in three formats which are they are .txt one is .dat and one is .fil. Three txt, dat and file. Text data and file. ঠিক আছে txt has no encoding, it is directly open. txt মানে text format, আমি এটা directly open করে দেখতে পারি কি এর ভিতরে কি স্টোর আছে না আছে। dat and file are encoded. মানে তোমাকে যদি এমন ফাইলটাকে স্টোর করে রাখতে হয় কি জেনারেলি ওটা কেউ খুলে বুঝতে না পারে কি ভেতরে কি লেখা আছে আনটিল আনলেস ইউ আর ওপেনিং ইট থ্রু এ প্রোগ্রাম বাইরে থেকে কেউ কপি করে বা ওপেন করে কেউ যদি না ফাইলটা দেখতে চায় তাহলে তুমি এই দুটো ফরম্যাট ইউজ করবে আর টিএক্সটি করলে ডট টেক্সট ফাইল হয়ে যাচ্ছে ওটা যে কেউ ওপেন করতে পারে দেখতে পারে তুমি ভেতরে কি ডেটা স্টোর করে রেখেছো সো দিস অল দ্য থ্রি ফরম্যাটস অফ ফাইল ক্যান বি ইউজড টু অপারেট আ পাইথন program okay now how to open this file how to operate on this file the three steps how to operate a file are first we have to open a file then we have to read or write to a file and third we have to close up these are three operations that has to be done open কি করে লিখি first of all open লেখার জন্য আমার দুটো ওয়ে আছে আচ্ছা ওপেন যে লিখতে হয় ওপেন এর কমান্ড হয় ওপেন কারেক্ট দেন উই রাইট হিয়ার ফাইল নেম and mode this also in quotation this also in quotation এবার স্যার এই ফাইল নেম কি হয়ে গেল এবং মোড কি হয়ে গেল ফাইল নেম নাম থেকে বুঝতে পারছি ফাইল নেম মানে যে ফাইলটা ওপেন করতে চাই সে ফাইলের নাম লিখবো আর মোড মানে কোন ভাবে খুলতে চাই মানে কোন ভাবে মানে দিস মোডস আর ফোর টাইপস হোয়াট আর দে আর আর ডব্লিউ এ এন্ড এক্স আর ডব্লিউ এ এন্ড এক্স আর মানে রিড মোড you will open the file just to read the data you cannot change the data or you cannot add something to the data you can just read w মানে write you will write append means to add স্যার রাইট করার অ্যাড করার মধ্যে তফাৎটা কি রাইট করলে কি করবে আগের থেকে যা যা ডেটা ছিল ফাইলের মধ্যে সবগুলোকে সরিয়ে দেবে ওয়াইপ করে দেবে নতুন করে ডেটা লিখতে শুরু করবে আর অ্যাপেন্ড মোডে খুললে যা ডেটা আছে থাকবে তার নিচের থেকে রাইট করতে শুরু করবে means if you are opening a new file
you will go with W. But if you are opening a pre-existing file, you will go with A. Then what is that X? X neither writes neither reads. It just creates a file and sends a signal whether the file exists or not. Correct? X की करे, it just creates a file and returns error और returns okay कि हाँ भाई मैंने फाइल बना दिया है, कि मैं हमसे फाइल नहीं बना, कि मैं ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा हमको कोई ना कोई एक आउटपुट हमको सेंड कर देगा दिस एक्स में। एग्जांपल से बताते हैं कैसे लिखते हैं। हम लिखेंगे लाइक दिस F1 एक फाइल का नेम, जैसे फाइल 1 एक वेरिएबल लेना पड़ता है ना, n इक्वल्स टू इनपुट, b इक्वल्स टू इनपुट, उस तरह फाइल 1 इक्वल्स टू एक नाम लेना पड़ता है। फाइल 1 इज इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट में स्टूडेंट डॉट डैट कॉमा मोड, सपोज राइट मोड R. This is how we are writing. Correct? Now, the files that we are opening, their encoding has to be mentioned. What is their encoding? That the data will be written in the form of text or the data will be written in the form of binary or in the form of images, in the form of symbols. ये हमको मेंशन करना पड़ेगा। अगर हम डेटा को जो फाइल में लिखेंगे वो ऑर्डिनरी टेक्स्ट के हिसाब से लिखेंगे या एक बाइनरी मतलब एक सिंबल्स के हिसाब से लिखेंगे। इट इज बेटर टू राइट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, क्योंकि अगर मान लो कोई अगर तुम्हारे फाइल को ओपन करता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सिंबल्स में लिखा हुआ। और अगर टेक्स्ट मोड में लिखेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट होता है तो वो ऑर्डिनरी टेक्स्ट लिखा रहेगा, जो लिखा है तुम्हारे फाइल के अंदर वो पढ़ लेगा। करेक्ट? तो हम ये तीनों में से कोई भी फाइल का नाम देंगे, डॉट डैट, डॉट फाइल या डॉट टीएक्सटी, और हमको मेंशन कर देना है कि जो फाइल में हम राइट करेंगे या रीड करेंगे वो किस एन्कोडिंग में करेंगे, टेक्स्ट एन्कोडिंग में या इमेज एन्कोडिंग में। तो उसके लिए हमको यहाँ पे हियर हमको लिखना पड़ेगा आइदर टी या फिर बी। दिस टी इज फॉर टेक्स्ट, दिस इज फॉर बाइनरी। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही होता है, मतलब अगर हम कुछ नहीं भी लिखे तो वो टेक्स्ट ही होगा। मतलब ये ऐसे लिखाएगा कॉमा आर टी, नहीं भी लिखे तो ये टी ही होगा, बाय डिफॉल्ट टी रहता है। लेकिन अगर हमको बाइनरी मोड में करना है तो हमको ऐसे कॉमा आर बी ऐसे लिखना पड़ेगा। राइट करने के लिए डब्ल्यू बी ऐसे लिखना पड़ेगा। मीन्स आई एम राइटिंग द डेटा राइट मोड और इन बाइनरी एनकोडिंग, ऐसे हमको लिखना पड़ेगा। तो द एनकोडिंग आ रहा आइदर टी या फिर बी, एंड ओपन करने का मोड है आर, डब्ल्यू, ए और एक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू ओपन अ फाइल, कि हमने फाइल को ओपन किया, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम फाइल को रीड या राइट करेंगे। कैसे? ये जो फाइल का नाम हमने डिक्लेयर किया था F1, इस F1 की मदद से हम रीड या राइट करेंगे लाइक दिस, फाइल 1 डॉट रीड या फिर फाइल 1 डॉट राइट। फाइल 1 डॉट रीड, फाइल 1 डॉट राइट। सर क्या लिखेंगे रीड और राइट के अंदर? हमको जो डेटा या जो वेरिएबल राइट या रीड करना है, हमको अगर क्या बोलते हैं एक फाइल के अंदर अगर हमको एक या दो वेरिएबल राइट करना है तो ऐसे राइट लिखेंगे, हमको एक या दो वेरिएबल रीड करना है तो ऐसे लिखेंगे। करेक्ट? तो दिस इज हाउ माई डेटा इज रिटन और रेड। रिटन और रेड मतलब आइदर राइट कर सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं फ्रॉम अ फाइल। कैसे? फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे यहां बना है, और उस फाइल में रीड या राइट का हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या सर? इसमें एक एक करके डेटा राइट होगा, एक एक करके मीन्स आइदर हम अगर एक रोल नंबर देंगे तो सिर्फ एक रोल नंबर, फिर एक नेम देंगे तो फिर एक नेम, फिर वी वर डिस्कसिंग कि अगर हमको कुछ एक साथ बहुत सारा डेटा राइट करना है, जैसे पूरा रिकॉर्ड राइट करना है इन द डेटाबेस वी यूज टू राइट ना द होल रिकॉर्ड, है ना, जैसे रोल नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एक लंबा सा पूरा रिकॉर्ड अगर राइट करना है तो कैसे राइट करें? तब तो एक एक करके लिखना पड़ेगा। एक मतलब 10 डेटा है तो 10 बार राइट लिखना पड़ेगा। 10 डेटा है रीड कर लो, 10 बार रीड करना पड़ेगा। उसके लिए एक दूसरा काम करेंगे, उसके लिए मतलब पिकल मॉड्यूल यूज करेंगे। पिकल, PICKLE, अचार, पिकल मॉड्यूल, वो बात की बात है। ठीक है, वी विल स्टडी दैट आउट। लेकिन अगर एक एक करके अगर हमको डेटा रीड करना है या एक एक करके डेटा राइट करना है तो हम ये यूज करेंगे।
सर एक और काम है सर, हमको एक पूरा का पूरा लाइन अगर रीड करना, एक पूरा लाइन, एक लाइन 80 कैरेक्टर का होता है, एक लाइन 80 कैरेक्टर्स का होता है। अगर पूरा 80 कैरेक्टर्स का एक लाइन रीड करना है तो क्या यूज करेंगे? देन आवर फंक्शंस विल बी file1 dot read line and file1 dot write line. Read line, write line are the functions that are used to read the complete line. पूरा का पूरा लाइन हमको रीड करके ये बता दो। करेक्ट? So these are the two ways of how to read or write from a particular file. अगर हमको वेरिएबल बाय वेरिएबल चाहिए तो ऐसे यूज करेंगे, अगर पूरा लाइन चाहिए तो ऐसे यूज करेंगे। करेक्ट? एंड फाइनली क्लोज। इट इज अ वेरी गुड हैबिट कि आप जितनी बार फाइल को ओपन कर रहे हैं उतनी बार फाइल को क्लोज भी करेंगे। अगर आप फाइल को क्लोज नहीं करते तो क्या एरर हो सकता है? अगर एरर कुछ होता नहीं है जनरली, लेकिन अगर बाई चांस आपका डेटा लॉस होने का चांसेस हो जाएगा। बाई चांस हो सकता है कि अगर मान लो कि एक ही मोड में अगर एक फाइल को दोबारा खोल दिया गया, जैसे हम ऑलरेडी मान लो रीड मोड में खोले हुए और फिर से प्रोग्राम में फिर से उसको रीड मोड में खोला गया, एक फाइल को दो बार एक ही मोड में नहीं खोल सकते या अलग मोड में नहीं होना चाहिए। एक फाइल जो ऑलरेडी ओपन है उसको फिर से आप ओपन नहीं कर सकते, तो क्या होगा? उसका कुछ डेटा लॉस होगा। हो सके पूरा डेटा लॉस हो जाए, हो सके लास्ट का कुछ डेटा लॉस हो सके फर्स्ट का कुछ डेटा लॉस हो, तो हम लॉस नहीं होने देंगे। इसीलिए एवरी टाइम दैट यू ओपन अ फाइल इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू क्लोज द फाइल। कैसे क्लोज करेंगे? जैसे नाम तो फाइल रखे थे तो यहां पे लिखेंगे file1 डॉट क्लोज, लाइक दिस इज हाउ वी कैन क्लोज इट। जस्ट डॉट क्लोज और कुछ नहीं लिखना पड़ता। So there are three things. This is the first one, that how to open a file, how to read or write in a file and how to close a file. ये तीन ही काम करना पड़ता है एक फाइल में। आप जो डेटा रखेंगे वो परमानेंटली स्टोर होके रह जाए। अब क्या करना है सर? अब जानना है कि कैसे एक सैंपल प्रोग्राम आपको बता के देते हैं और फिर बोलेंगे कि हम लोग कैसे पूरा का पूरा एक रिकॉर्ड हम स्टोर कर सकते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ए लिस्ट और इन द फॉर्म ऑफ ए डिक्शनरी, है ना? जैसे पूरा जनरली एक डिक्शनरी बेटर इसलिए है क्योंकि डिक्शनरी में मल्टीपल डेटा को हम नाम से मतलब पहचान सकते हैं कि व्हाट इज द नेम। जैसे होता है ना एक स्टूडेंट का, जैसे हम लोग एसक्यूएल में ऊपर कॉलम्स देते थे, हेडिंग, जैसे ये टेबल बनाते थे ऐसे एसक्यूएल में लाइक दिस। यहां लिखते थे नेम, यहां लिखते थे रोल, यहां लिखते थे सब्जेक्ट, यहां लिखते थे क्लास, यहां लिखते थे फीस, लाइक दिस वी आर गिवन द हेडिंग और इसके नीचे हम लोग डेटा पुट करते। दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ एसक्यूएल। तो अगर हम डिक्शनरी करेंगे तो डिक्शनरी में होना, डिक्शनरी में लाइक दिस हम हेडिंग देके पहचान सकते हैं कि कौन सा डेटा किसके लिए है। सो देयरफॉर एक डिक्शनरी यूज करना बेटर है। लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट में क्या है? लिस्ट में हेडिंग नहीं, यू हैव टू गिव द इंडेक्स नंबर, जैसे 0 1 2 3 लाइक दिस। लेकिन हम डिक्शनरी में हम नेम मेंशन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई अगर हमको पूरा रिकॉर्ड राइट करना है तो डिक्शनरी के मोड से राइट करना इज बेटर। ठीक है? नाउ तो हाउ टू सिंपलेस्ट प्रोग्राम, जस्ट कि कैसे हम कोई डेटा को फाइल में राइट कर सकते हैं और कैसे उसको रिट्रीव कर सकते हैं। करेक्ट? नाउ सी कैसे बने। सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू राइट रोल नेम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ फाइल। ये तीनों काम को करना है एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड प्रेजेंट इन द फाइल। हमको तो पता नहीं उस फाइल के अंदर क्या है, हो सकता है उस फाइल के अंदर डेटा हो सकता है उस फाइल के अंदर डेटा ना हो। अगर उस फाइल के अंदर डेटा हो या ना हो, हम किस मोड में ओपन करेंगे? अपेंड मोड में। अगर डेटा हो तो उसके नीचे से राइट करेगा, अगर डेटा नहीं हो, वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो एक नया फाइल क्रिएट हो जाएगा और नया करके लिखना शुरू हो जाएगा। सो बेस्ट है जब भी आपको ऐड करने की जरूरत पड़े तो आप अपेंड मोड में ही फाइल को ओपन कीजिएगा। कैसे? सबसे पहला काम F1, एक फाइल का नाम लेना पड़ेगा। F1 इक्वल्स टू ओपन। ठीक है? क्या ओपन करेंगे हम? फाइल का नाम। चलिए मान लीजिए stud.dat किस मोड में ओपन करना है? सर ओपन करना है अपेंड मोड में। कौन सा एन्कोडिंग होगा? मान लीजिए टेक्स्ट एन्कोडिंग होगा तो टी लिखेंगे। ये टी हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट टी ही रहता है। ओके, चलिए ओपन हो गया F1, एक फाइल हमको मिल गया। नाउ आई हैव टू इनपुट रोल नेम एंड मार्क्स। तो क्या लिखेंगे, R इज इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर रोल नंबर, N is equals to input enter name, M is equals to float input enter marks। ओके, सो तीन चीजें मैं इनपुट ले लिया। अब ये तीनों डेटा क्या करना है, F1 में हमको राइट करना है। कैसे, F1 डॉट राइट, आई एम गोइंग टू राइट द डेटा। कैसे राइट करेंगे सर, राइट करने का उपाय है, आई विल राइट R प्लस N प्लस M, R प्लस N प्लस M, तीनों एक साथ। और अगर तीनों अलग अलग अगर लिखना है तो अलग अलग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप अलग अलग लिखिए। राइट R, या फिर एक ही साथ लिख कोई R प्लस एक गैप मेंटेन करने के लिए प्लस N प्लस M, एक गैप दे देके तीनों राइट कर दिए। और फिर लिखेंगे F1 डॉट क्लोज। हो गया, मतलब यहां से यहां तक मेरा राइटिंग का काम कर दिए। अब क्या करना है सर, हमको रीड करना है और सारे रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे, फिर से फाइल को ओपन करेंगे, F1 इक्वल्स टू ओपन। देखिए ये ओपन किए थे तो इसको यहां पे क्लोज किए। अब यहां पे ओपन कर रहे हैं, किस मोड में, यहां एपेंड मोड में ओपन किए थे, यहां हम रीड मोड में ओपन करेंगे। स्टूड डॉट डेट इन R मोड, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर X इन F1, कि X मतलब एक वेरिएबल है इन F1, कि F1 में आपको जितना सारा डेटा मिलते जा रहा है तब तक आपको क्या करना है, प्रिंट करते रहना है। कैसे लिखेंगे, यहां पे प्रिंट X, प्रिंट ठीक, और लास्ट में F1 डॉट। सो यहां भी इसका काम खत्म हो गया। हमने एक बार इसको अपेंड मोड में ओपन किया तो क्लोज किया, फिर रीड मोड में ओपन किया, फिर क्लोज किया। ऐसा क्यों लिखे, फॉर X इन F, कि F1 में जितना बार उसको कुछ डेटा मिल रहा है वो उतना बार वो रन करेगा और उतना बार हमको ये प्रिंट करेक्ट। सो दिस इज हाउ माई डेटा इज बीइंग रिटन। बोले कि सर ये तो एक बार में पूरा रिकॉर्ड करेगा, अगर हम इंडिविजुअली एक एक करके रीड करना चाहे तो क्या करेंगे, तो इंडिविजुअली हमको लिखना पड़ेगा रीड R, रीड M, रीड N, ठीक है। कैसे, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह ऐसे लिखेंगे, while true, 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 अच्छा T कैपिटल होगा, बाकी सब while true R is equals to F1 dot read, N equals to F1 dot read, M equals to F1 dot read, और फिर लास्ट में प्रिंट R, N, M। और ये था फॉर के अंदर का काम, और ये है हमारा व्हाइल। आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक बार में अगर रीड करना चाहे तो ऐसे करेंगे, और इंडिविजुअल एक एक रीड करना चाहे तो ऐसे, दोनों ही आपका पॉसिबल है। और लास्ट में जब क्लोज करना था, यहां भी क्लोज तो करना ही पड़ेगा, मतलब सिर्फ हम ये वाला पार्ट को यहां लिखें, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट को यहां से लेके यहां, ठीक है। सो जैसे आपका इच्छा, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये फिर बोले ये तो बहुत हेडेक वाला काम है, क्योंकि हमको अलग अलग 3 डेटा था, सिर्फ रोल नेम और मार्क्स, तो इसके लिए हमको इतना खटना पड़ा। अगर मान लो अगर हमको और डेटा है तो
अगर 15 या 20 डेटा है तो हम इंडिविजुअल लेके करके खटेंगे इस तरह, मर नहीं जाएंगे सर खटते करते। तो क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द पिकल मॉड्यूल। एक्चुअली हमारे पाइथन में बहुत सारा मॉड्यूल या बहुत सारा हेडर फाइल जैसे सी या सी प्लस होता है पहले से ही प्रेजेंट है, बहुत सारा लाइब्रेरीज, उसके अंदर ऐसा बहुत सारा फंक्शन है जो हमारे काम को इजियर कर देता है। हमको अपने से वो फंक्शन या अपने से वो कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पाइथन में पहले से स्टोर किया हुआ है। तो आपको हमको ये काम करने के लिए कौन कौन सा मॉड्यूल प्रेजेंट है, मॉड्यूल्स का नाम है हमारा पहला पिकल, PICKLE, और दूसरा है जेसॉन। पिकल और जेसॉन, पिकल और जेसॉन में अंतर क्या है, पिकल इज स्पेसिफिकली फॉर पाइथन, दोनों का कुछ फुल फॉर्म होता है, हमको फुल फॉर्म इतना याद नहीं आ रहा है लेकिन कुछ नाम होता है, इसका भी कुछ नाम है PIC ऐसा कुछ, इसका P पाइथन से कुछ नाम है, और यहाँ J जावा स्टैंडर्ड ओपन ऐसा कुछ है। मतलब ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, जेसॉन सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में, पाइथन में। मतलब तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो पाइथन में लेकिन दूसरा कोई फॉर्मेट में अगर वो फाइल है तो उसको भी तुम रीड कर सकते हो, या फिर पाइथन में राइट किया हुआ फाइल है वो दूसरे फॉर्मेट में रीड कर सकते हो। दोनों वे में इंटरऑपरेबिलिटी चलेगा अगर हम जेसॉन यूज करेंगे। लेकिन पिकल जो है इट इज स्पेसिफिकली फॉर पाइथन, तो जाहिर सी बात है ये स्पेसिफिक पाइथन है तो ये बेसिक इजियर होगा। ठीक है, हम लोग दोनों से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ पिकल दिया हुआ है तो हमारा भी टारगेट सिर्फ पिकल ही होगा। पिकल के अलावा हम लोग जेसॉन में जाएंगे नहीं। अगर फ्यूचर में लगे प्रोग्रामिंग के समय, प्रोजेक्ट के समय, तब जेसॉन लगे तो किया जाएगा। फिलहाल अभी जेसॉन की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ पिकल से काम। तो कैसे ये काम होगा सर, सबसे पहले whenever you are using a module or using a library in your Python program, you have to import that library into your program. कैसे सर, ऐसे लिखते हैं import pickle, सबसे पहला काम ये लिखेंगे, उसके बाद हम प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। ठीक है, यहां पे इंपोर्ट करने के लिए क्या होगा, we will use these two commands, एक है pickle.load and pickle.dump, pickle.load and pickle.dump। सर अब बताइए ये लोड और ये डंप क्या काम करता है, नाम से लग रहा है डंप, डंपिंग मतलब क्या होता है, डाल देना। किसके अंदर डालेगा, फाइल के अंदर। डंप क्या करेगा, तुम जो डेटा दिए हो पिकल को, वो डेटा को ले जाके फाइल में घुसेड़ देगा, डाल देगा फाइल में। दिस इज द वर्क ऑफ डंप। डंप इज यूज्ड टू राइट डेटा इनटू फाइल, करेक्ट। और इसको लिखने का तरीका कैसा है, इसको लिखने का तरीका है डंप ब्रैकेट में डेटा कॉमा फाइल, कि क्या डेटा राइट करना है और किस फाइल में राइट करना है, ऐसे लिखा जाता है। डंप मतलब pickle.dump, एक्चुअली pickle.dump डेटा कॉमा फाइल, क्या डेटा राइट करना है और किसके अंदर राइट करना है। दिस इज हाउ दैट इट इज रिटन, डंप। तो लोड कैसे लिखते हैं, लोड का काम क्या है, इट इज रीड डेटा फ्रॉम फाइल। इट इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल। इसको कैसे लिखते हैं, इसके भी सेम वही pickle.load ब्रैकेट में सिर्फ फाइल। हाँ सर, सिर्फ फाइल। तो इसका डेटा जाएगा कहां, इसका डेटा कहां जाएगा, हम सामने इक्वल्स टू यहां पे डेटा का नाम लिखेंगे, यहां पे वेरिएबल नाम लिखेंगे कि डेटा इज इक्वल्स टू pickle.load और किस फाइल से लोड करना, डेटा इक्वल्स टू pickle.load किस फाइल से लोड करना। दिस इज हाउ माई डेटा इज बीइंग either written to a file or read into a file by using this pickle module। समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम बताइए। ठीक, अब एक आप लोग को बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई काम आपको अपने से करना पड़े, आत्मनिर्भर, मोदी का फेवरेट वर्ड, अपने से करना पड़े, यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन डूइंग दैट वर्क, क्योंकि तुमको मालूम है कि तुम ये खुद कर रहे हो, तुमको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे एरर होने का या कुछ गड़बड़ होने का चांसेस बहुत कम है, बिकॉज यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस। लेकिन अगर तुमको कोई काम दूसरों के भरोसे करना हो या दूसरों से हेल्प लेके करना हो,
there is a lot of chances that errors will be there, mistakes will be there, या problems will be there, exceptions will be there, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई. तुम किसी दूसरे से हेल्प ले रहे हो, वो जैसा बिहेव करेगा तुमको भी वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा. सो ये जो पिकल मॉड्यूल है ये तुमने बनाया है? नहीं सर, हमने तो नहीं बनाया. किसने बनाया? मैंने बनाया सर, मैंने भी नहीं बनाया. किसने बनाया? आइदर जिसने पाइथन को डेवलप किया, जिस भाई साहब ने, उसने बनाया है, या फिर तुम जो पाइथन यूज कर रहे हो आइडल पाइथन के जो डिजाइनर है उसने बनाया है. अब उसका ये पिकल मॉड्यूल कैसे बिहेव करेगा तुम्हारा, कि उसके ऊपर कोई कंट्रोल है? कंट्रोल तो नहीं है. तो क्या करेंगे सर? मतलब एरर होने का चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है, बिकॉज तुम ये बाहर से इंपोर्ट करके ला रहे हो. बाहर में ये कैसा था, कैसा बिहेव करेगा, तुमको कुछ मालूम. अगर तुमको ये डाउट लगे कि मेरे मतलब मॉड्यूल के अंदर कुछ एरर्स जनरेट हो सकते हैं, मेरे फाइल के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, देयर मे बी सम एक्सेप्शंस, यू हैव टू पुट दिस इन अ ट्राई कैच ब्लॉक. ट्राई कैच बोले थे, याद है क्लास 11 में? नहीं, ये बोलते ना. ठीक है, सुन लो क्या बोलते. Try, catch and finally. These are the three words that we are. If then else होता है ना? Try, catch, finally. 3 words. क्या काम करता है? Try मतलब हमको जो काम करना है, हमको फाइल को रीड करना है, फाइल को राइट करना है, चाहे ऐसे रीड राइट करें, चाहे लोड और डंप से रीड राइट करें. हमको एक फाइल के अंदर बेसिक क्या करना पड़ता है? रीड और राइट करना पड़ता है. फाइल को ओपन करने में हर्जा नहीं है. हर्जा है फाइल के अंदर कुछ डालने का या फिर फाइल से कुछ निकालने का. यहां पे एरर जनरेट होगा. तो हम क्या करेंगे, जिस जगह पे हमको लगे एरर हो सकता है उस पोर्शन को हम कहां डालेंगे? ट्राई के. करेक्ट. और अगर बाई चांस यहां कुछ अगर एरर आए, कुछ एक्सेप्शन आए, तो उसको किसके अंदर भरेंगे? कैच के अंदर. ठीक है. और एक्सेप्शन खत्म होने के बाद मेरा प्रोग्राम कहां पे जाके खत्म होगा? वहीं रुका हुआ रहेगा? नहीं, कहीं पे जाके खत्म होना चाहिए. मतलब मेरा फाइल बंद हो जाना चाहिए. हम पहले बोले कि अगर यू आर ओपनिंग अ फाइल, इट इज योर सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज द फाइल ऑल्सो. तो हम ये फाइनली में जाके फाइल को क्लोज करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे. जो भी हमको ऑपरेशन करना फाइल पे वो ट्राई के अंदर करेंगे. हमको जो लगे कि एरर जनरेट होकर जो होना चाहिए वो कैच में होगा. और फाइनली क्या काम करेगा कि ये तुम्हारा प्रोग्राम कहां पे जाकर रुकना चाहिए. मेरा प्रोग्राम कहां पे जाकर रुकना चाहिए? सर जहां पे भी रुके फाइल को बंद कर दीजिए प्लीज. फाइल को मतलब कुछ खानी नहीं होना चाहिए. तो वो हम फाइनली. दिस इज द 3 पार्ट दैट वी विल यूज इन दिस पिकल मॉड्यूल सो दैट आवर फाइल ऑपरेशन परफॉर्म्स स्मूथली. सही है. चलिए एक प्रोग्राम करके आप बताते हैं कैसे ये काम करता है. ओके. सो यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है. राइट ए रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट. आपको एक पूरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखना है, अलग अलग करके नहीं, पूरा का पूरा एक सेट लिखना है. नेम रोल क्लास एक साथ लिखना है. सॉरी, नेम रोल मार्क्स एक साथ लिखना है इन अ फाइल, एक फाइल में. ठीक है. एंड प्रिंट नेम ऑफ ओनली दो स्टूडेंट्स. उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम प्रिंट होगा जिसका मार्क्स 50 से ज्यादा. क्लियर? उम्मीद है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए कैसे करेंगे सर? इजी. सबसे पहला काम क्या बोलते थे? पिकल को इंपोर्ट करना पड़ेगा. तो सबसे पहले इंपोर्ट पिकल. फिर यहां क्या करेंगे सर? 2 डिक्शनरी बनाएंगे, 2 ब्लैंक डिक्शनरी बनाएंगे. D1 इक्वल्स टू ब्लैंक डिक्शनरी, D2 इक्वल्स टू ब्लैंक डिक्शनरी. 2 डिक्शनरी बन गया. अब हम क्या करेंगे? स्टूडेंट का रोल नेम और मार्क्स को इनपुट लेंगे. तो R इज इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर रोल. N इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर मार्क्स, सॉरी एंटर नेम. और M इज इक्वल्स टू इनपुट, सॉरी इनपुट का मतलब फ्लोट
इनपुट एंटर मार्क्स। ओके, तो आर एन और एम तीनों हो गया। अब क्या करेंगे सर, इन तीनों को हमको डिक्शनरी में पुट करना है। कैसे? तो D1, डिक्शनरी का नाम D1 इज इक्वल्स टू, सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, रोल इक्वल्स टू आर कॉमा नेम इक्वल्स टू एन कॉमा marks equals to m. So I have stored roll as r, name as n and marks as m. ये तीनों कर दिए। अब क्या करना है, इस पूरे के पूरे D1 को, मतलब पूरे इस रिकॉर्ड को एक साथ हमको फाइल में स्टोर करना है। कैसे करेंगे? फाइल को ओपन करते हैं, f1 इक्वल्स टू ओपन stud डॉट dat कॉमा, किस मोड में सर, अपेंड मोड में। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई रिकॉर्ड राइट करें, मतलब पूरा पूरा सेट राइट करें, पूरा सेट, पूरा रिकॉर्ड, माइंड इट, बार बार बोले दीजिए, द फाइल मस्ट बी ओपन इन बाइनरी मोड, बी बाइनरी मोड में ही ओपन करेंगे। प्लीज डोंट ओपन इट इन टेक्स्ट मोड। क्यों? जब आप पूरा रिकॉर्ड लिख रहे हैं, वो अलग अलग डेटा नहीं है, वो एक ही डेटा है, पूरा का पूरा एक ही डेटा है, वो अलग अलग। इसको कैसे अलग करेंगे? कॉमा देके, फुल स्टॉप देके, टैब देके, वो अलग करना नहीं है, वो एक अलग सिंबल से डिफरेंशिएट किया जाएगा। सो आप कौन सा सिंबल यूज होगा नहीं होगा वो आपका हेडेक में नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई जब भी आप पूरा सेट, आप एक एक करके वेरिएबल राइट कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक करके लाइन राइट कीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस मोड में ओपन करना ओपन कीजिए, लेकिन whenever you are writing a record, पूरा सेट, रोल नेम, क्लास, जेंडर, फोन नंबर, एक पूरा सेट राइट करेंगे, the file must be operated in binary mode. I am repeating once again, binary mode. तो ऐसे B लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, फाइल तो ओपन हो गया, अब हमको सर फाइल में राइट करना है। कैसे? फाइल ओपन हो गया, अब फाइल में राइट करेंगे। राइट करने के लिए हम पहले ही बोले, जब हमको डाउट है कि एरर हो सकता है, हम क्या करेंगे, उसको ट्राई ब्लॉक में डाल देंगे। तो यहां से यहां जा रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे ट्राई ट्राई। अब क्या करना है, डंप करना है, तो लिखेंगे पिकल डॉट डंप। क्या डंप करना है सर, क्या डेटा? यहां पे डेटा हमको डंप करना है D1, किसके अंदर डंप करना है, F1 के। पिकल डॉट डंप D1 F1 हो गया। कैच में कुछ करना है, अगर बाई चांस कुछ एरर आए, कुछ करना है आपको, अगर कुछ करना है तो वेल एंड गुड यहां लिखिएगा। अगर कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना, हमको सर कुछ कहीं दिखाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो हम सिर्फ एक कमेंट देके छोड़ दे रहे हैं। कमेंट मालूम है, नॉट इज कमेंट, एक कमेंट देके छोड़ दे रहे हैं, एरर, ठीक है। फाइनली क्या करेंगे, हम फाइल को क्लोज करेंगे, तो लिखेंगे यहां F1 डॉट क्लोज, मतलब मेरा फाइल राइट हो गया, ठीक। अब हमको क्या करना है, फाइल को रीड करना है और उन डेटा को प्रिंट करना है जहां पे मार्क्स मोर देन 50 है। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से फाइल ओपन करेंगे, F1 इक्वल्स टू ओपन stud डॉट dat, किस मोड में, रीड मोड में, RB, बिकॉज आई हैव टू ऑपरेट इन बाइनरी एनकोडिंग, बाइनरी मोड में ओपन करना है, ठीक है। फिर ट्राई, क्या करेंगे ट्राई में सर, लोड करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे यहां L2 एक ब्लैंक, हमने यहां पे एक ब्लैंक डिक्शनरी ले लिया था D2, हम यहां D2 को यूज करेंगे। D2 इज इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में F1, ठीक है। तो पिकल से डेटा मेरा लोड हो गया। अब हम यहां क्या करेंगे, चेक करेंगे, इफ D2 ब्रैकेट में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50, अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो हम नेम को प्रिंट करेंगे। हम क्या लिखेंगे, प्रिंट
ब्रैकेट में D2 नेम। ओके, यही तो काम करना था हमको कि अगर मेरा डेटा सही है तो क्या होगा। सॉरी हमने पूरा डेटा ले लिया D2 में। D2 मतलब पूरा एक लिस्ट है, पूरा डिक्शनरी है जिसमें रोल नेम मार्क्स तीनों इनपुट हो जाएगा। अब हम चेक कर रहे हैं कि D2 का मार्क्स 50 से ज्यादा है या नहीं। अगर है तो उसको प्रिंट करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब क्या करना है, ट्राई हो गया। ट्राई के बाद कौन सा था, कैच। कैच तो हम कुछ किए नहीं थे, यहां भी कैच लिखने की जरूरत, अगर कुछ नहीं करेंगे तो कैच लिखने का जरूरत नहीं है। अगर कुछ करना है, कुछ प्रिंट करना है या कहीं पे कुछ प्रोग्राम लिखना है तो इसका नाम लिखेंगे। लेकिन हमको तो कुछ करना नहीं है तो हम सीधे ट्राई से फाइनली जा सकते हैं। सीधे ट्राई से फाइनली, कुछ तो करना नहीं है, क्या जगह लिखेंगे फाइनली में f1.use। माई प्रोग्राम इज कंप्लीट। समझ में आया कितना आसान है। अगर हम पिकल यूज करेंगे तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक बार में रीड हो जाएगा। देखो जैसे हम यहां लोड लिखे हैं पूरा, वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड D2 में चला गया। अब हमको D2 के जिस डेटा का जरूरत पड़े, रोल नेम क्लास, जो डेटा का जरूरत पड़े, हम यहां पे उसको चेक करके उसको प्रिंट कर सकते हैं या उसको एडिट कर सकते हैं कि भाई जिसका मार्क्स 50 से ज्यादा हो उसको 10 मार्क्स और एक्स्ट्रा दे देना चाहिए, या ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट। दिस इज हाउ इट इज। बस समझ में आया, ये प्रॉब्लम बताइए। हम इंडिविजुअली अगर एक एक करके राइट या रीड करें तो रीड राइट, रीड लाइन, राइट लाइन, ये सब फंक्शन यूज करेंगे। लेकिन अगर पूरा रिकॉर्ड राइट करना है तो आई हैव टू यूज दिस pickle module and I will use the formula use the function pickle.dump and pickle.load। pickle के अलावा एक और मेरे पास मॉड्यूल है, इसका नाम है JSON, लेकिन JSON आप लोग को यूज करना भी नहीं सिखाया गया। ठीक है, आपको एक और मेथड बोलते हैं कि अगर फाइल को दूसरे मेथड से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हम फाइल को, एक तो फाइल का मोड देने की जरूरत नहीं पड़ती कि फाइल किस मोड में ओपन होगा, राइट मोड, ना रीड मोड, ना अपेंड मोड, ये जिस मोड में चाहे उस मोड में यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, यहां आपको फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक प्रोग्राम उसको क्लोज कर देता है। कंपाइलर को मालूम है कि अगर इस प्रकार हम फाइल को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक फाइल को क्लोज करने की जिम्मेदारी मेरी पड़ जाएगी। कैसे, हम लिखेंगे विथ, WITH, विथ। ठीक है, फिर यहां लिखेंगे ओपन, ब्रैकेट में यहां फाइल नेम एज F1 कि जिसके नाम से, मतलब हमने यहां पे जैसे ओपन किया था ये F1 नाम से, यही काम अगर हम लिखते यहां पे तो ऐसे लिखते विथ ओपन ब्रैकेट में stud.dat as F1। तो यहां पे हम जो लिखना है लिखते, करेक्ट। और लास्ट में क्या करते हैं, यहां पे एक और चीज, हमको यहां कोलन देना पड़ता क्योंकि ये एक प्रोग्राम, ये एक मतलब उसका इंडेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जो लिखना है लिख के खत्म हो जाए। यहां पे वो क्लोज लिखने की जरूरत, जैसे यहां पे हर ओपन के साथ क्लोज लिखना जरूरी हो जाता है, यहां ओपन के साथ क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट कंपाइलर उसको क्लोज कर देता है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। लेकिन ये ओल्ड मेथड होने के बावजूद ये एक सीधा सप्टा प्रोसेस है, साफ सुथरा है, समझ में आ रहा है कि हाँ सर किस मोड में ओपन करना है, किस इनकोडिंग में ओपन करना है। करेक्ट। अब द लास्ट टॉपिक, तो बोले सर इतना जल्दी ये चैप्टर खत्म, बोले कि चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसका प्रोग्रामिंग का बहुत सारा वैरायटी मिलेगा आपको, प्रोग्रामिंग का बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेगा। हमको सिर्फ कंसेप्ट बताना कि कैसे फाइल के अंदर रीड या राइट कर सकते हैं। तो हमने फाइल ओपन किया, फाइल के अंदर रीड राइट किया, फाइल को क्लोज किया। अब अगर मान लीजिए आपका वो फाइल का काम खत्म, फाइल यूज हो चुका है, ऐसा बहुत फाइल बनाएंगे, फाइल बहुत सारा स्टोर होता हुआ रहेगा आपके फोल्डर में जहां पे ये प्रोग्राम स्टोर्ड है। एक ना एक समय जाकर तो फाइल खत्म हो जाएगा, अब फाइल का जरूरत नहीं पड़ा, यू हैव टू डिलीट द फाइल। तो क्या करेंगे आप, क्या इस पाइथन के फाइल को डिलीट कर पाएंगे? बोले हाँ सर, फोल्डर में जाएंगे, सर्च करके डिलीट कर देंगे। अरे भाई वो तो तरीका नहीं है ना। तरीका है, अगर हम प्रोग्रामेटिकली फाइल को क्रिएट किए थे तो हमको प्रोग्रामेटिकली फाइल को डिलीट भी करना पड़ेगा।
सही बुझते हो কি বলতে যাচ্ছি? If I have opened the file using a program like this open function, तो it is my duty to delete the file also using a program. तो कैसे हम फाइल को डिलीट करेंगे ये हमको जानना है. डिलीट करने का तरीका है डिलीट फंक्शन या रिमूव फंक्शन. लेकिन ये डिलीट या रिमूव कौन करेगा? ये डिलीट या रिमूव करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. देयरफॉर जब भी हमको रिमूविंग ए फाइल, हमको जब भी एक फाइल रिमूव करना है, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल. हम सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट ओएस. ठीक है, फिर क्या करेंगे? हम लिखेंगे जो प्रोग्राम लिखना है लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे डिलीट करेंगे ओएस डॉट रिमूव ब्रैकेट के अंदर फाइल. ओएस डॉट रिमूव जो फाइल आपको रिमूव करना है. लेकिन एक बात बताओ, आपने ये कमांड लिखा ओएस डॉट रिमूव फाइल का नाम, आप तो डायरेक्टरी में घुसे नहीं, अंदर घुस के देखेंगे कौन कौन सा डायरेक्टरी है, उसके अंदर कौन कौन सा फाइल है. बाई चांस आपने जिस फाइल को डिलीट करने का कमांड दिया है वो फाइल वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता. वो फाइल वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी ने ऑलरेडी उसको डिलीट कर दिया है. तो क्या होगा? आपको एरर मिलेगा, कोई गंदा सा एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा. वो हमको नहीं चाहिए. आई डोंट नो. पहले मतलब सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो फाइल हम डिलीट करने जा रहे हैं वो फाइल आदौ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. इफ दैट फाइल एग्जिस्ट्स तो ही हम ये रिमूव करेंगे, वरना लिखेंगे भाई दिस फाइल डज नॉट एग्जिस्ट. कैसे? उसके लिए कमांड है पाथ डॉट एग्जिस्ट. पाथ डॉट एग्जिस्ट कैसे? ये तो इंपोर्ट हो गया. इंपोर्ट के बाद सीधे हम यहां आ जाएंगे, लिखेंगे इफ ब्रैकेट में ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, जो फाइल का नाम लिखना है. अगर ये एग्जिस्ट करता है तब जाके हम यहां पे लिखेंगे ओएस डॉट रिमूव, जो फाइल हमको रिमूव करना है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स पुट करके लिख देंगे सर ये फाइल हमको प्रेजेंट नहीं. मतलब ऐसे भी काम है. हम डायरेक्टली ओएस डॉट रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ओएस डॉट रिमूव करने का प्रॉब्लम क्या है कि बाई चांस अगर वो फाइल प्रेजेंट नहीं है तो वो हमको एरर जनरेट करेगा. लेकिन अगर हम इफ ओएस डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट ऐसा लिखते हैं तो अब सबसे पहले वो खोजेगा कि वेदर वो फाइल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको रिमूव करेगा, एल्स हमको कोई ना कोई एक मैसेज जनरेट करके बोल देगा कि भाई हमको ये फाइल नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट रिमूविंग अ फाइल. सो हमने क्या देखा कि हाउ वी कैन क्रिएट अ फाइल, हाउ वी कैन ओपन अ फाइल, हाउ वी कैन ऑपरेट ऑन अ फाइल, एंड फाइनली हाउ वी कैन डिलीट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर फाइल हैंडलिंग. आपको इस वीडियो के साथ एक नोट्स भी दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा. देयर विल बी 20 to 25 क्वेश्चंस इन देयर. आपको सारे प्रोग्राम एक एक करके बनाने हैं. उसके नीचे हम हिंट का लिंक भी भेज देंगे. अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि सर ये नहीं समझ में आया, ये कैसे हुआ, या हमको कुछ आपको स्कूल में कुछ नया बताया गया है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. थैंक यू.